اب چلے گی ٹرین، وہ بھی دنیا کی سب سے تیز۔ ہمیں شوق ہے سفر کا، لیکن تیز رفتار سفر کا۔ ہم سفر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم نئی جگہوں کو دیکھنا، اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن لمبے سفر سے ہم بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ تو انسان سفر کو مختصر سے مختصر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ 500 سال پہلے ایک کہانی میں مصنف نے ایک ایسی گاڑی کا ذکر کیا جو لکڑی کے پہیوں پر چلتی تھی اور بہت تیز رفتار تھی۔ ریل گاڑی شاید اسی خواب کی تعبیر ہے۔ اب گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز اور تیز رفتار بسوں کی ایجاد سے لوگ ان ذرائع کو ٹرین پر ترجیح دینے لگے ہیں، لیکن بلٹ ٹرینیں ہوائی جہاز اور بسوں کی کشش بہت جلد کم کر دی ہے۔ 1964 میں جاپان نے ٹوکیو سے اوساکا تک جدید پٹری بچھائی اور اس پر ایک ایسی ٹرین چلا دی جو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی تھی۔ ہوائی جہاز پر سفر کرنے والے کم خرچ اور کم وقت میں یہی سفر اب بلٹ ٹرین پر کرنے لگے ہیں۔ جاپان کی دیکھا دیکھی فرانس، اسپین، جرمنی، چین، بیلجیم، تائیوان، امریکہ اور برطانیہ میں بھی بلٹ ٹرینیں اور جدید پٹریاں تیار ہونے لگی ہیں اور تمام ملک اپنی ٹرین پر سفر کر رہے ہیں۔ جاپان میں دنیا کی سب سے تیز رفتار ٹرین چلتی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 581 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ بلٹ ٹرینوں کا سب سے بڑا جال چین میں ہے، جو 6300 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہاں کی بلٹ ٹرینیں 502 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہیں۔ بلٹ ٹرین ہوتی کیا ہے؟ جو ریل گاڑی کی پٹریوں پر 250 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تیز دوڑے، اسے تیز رفتار یا بلٹ ٹرین کہا جاتا ہے۔ بلٹ ٹرین بجلی اور ڈیزل دونوں سے چلتی ہیں۔ آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ تر ممالک اسے بجلی ہی سے چلاتے ہیں۔ نئی بننے والی بلٹ ٹرینیں شکل میں جیٹ جہاز جیسی بنائی جاتی ہیں، جس سے ہوا کی رکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ ہرمین ہائی سپیڈ ریل HHR کا منصوبہ سعودی حکومت نے منظور کر لیا تھا۔ یہ ریل مکہ، مدینہ اور جدہ کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ یہ مکہ سے جدہ آدھے گھنٹے میں اور جدہ سے مدینہ 2 گھنٹہ میں پہنچتی ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی کا آپس میں ٹرین کے ذریعے رابطہ ہے۔ پاکستان سے ایرانی دارالحکومت تہران اور وہاں سے ترکی تک ریل کی پٹری بچھی ہوئی ہے۔ اب اس پٹری کو بہتر بنا کر مال گاڑی اور مسافر ٹرین کے دوبارہ آغاز کے لیے منصوبہ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ پٹری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے یہ منصوبہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد سے مسافر گاڑی مال گاڑی 11 دن میں تہران سے ہوتی ہوئی استنبول پہنچے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان ابھی تک ٹرین کا سفر شروع نہیں ہوا، لیکن اس پر کام ضرور ہو رہا ہے۔ ضلع ایبٹ آباد کے شہر حویلیاں سے اس کا آغاز ہوگا اور یہ پٹری سمندر کی سطح سے 4730 میٹر بلند درہ خنجراب سے گزرتی ہوئی چین کے شہر کاشغر تک جائے گی۔ پاکستان میں بلٹ ٹرینیں لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر بذریعہ ٹرین 300 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 4 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ فاصلہ بلٹ ٹرین کے ذریعے صرف 1 گھنٹہ 25 منٹ میں طے ہوگا۔ کراچی میں ٹرام چلتی رہی ہے۔ کراچی ٹرام وے کی تاریخ 90 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ 1881 میں یہ منصوبہ بنا۔ 1884 میں اس پر کام کا آغاز ہوا۔ 10 اپریل 1885 کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ آج کے جناح پل، سابقہ نیپیر مول سے کمیاڑی تک چلتی تھی۔ 1975 میں صدر کے علاقے میں بڑھتی ہوئی ٹریفک
ट्राम के हादसात और ट्राम के पुराने हो जाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। ट्रेन का सफर सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन के हवाले से, ट्रेन प्लेटफॉर्म होम पर हो तो ट्रेन के नज़दीक मत जाएं, ट्रेन के पहियों से दूर रहें, ट्रेन किसी भी वक्त चल सकती है, ट्रेन के सामने से मत गुजरें, जहां रेलवे फाटक ना हो वहां पटरी एहतियात से अबूर करें, ट्रेन के चलने या रुकने से पहले अपनी नशिश पर बैठ जाएं, अचानक झटका लगने से आप गिर सकते हैं, सफर के दौरान में हाथ, पाँव या सर खिड़की से बाहर ना निकालें। दुनिया की पहली रेलगाड़ी, पटरियां तो हजारों साल पहले बन गई थी, लेकिन पहली बार पटरियों पर चलने वाली गाड़ियां 1550 में बनाई गई। ये रेलगाड़ियां मदनी कानों में इस्तेमाल की जाती थी और लकड़ी की पटरियों पर चलती थी। इस पर कोयला और नमक लाद कर कान से बाहर लाया जाता था। ये तंग पटरियों वाली गाड़ियां थी और इन्हें ट्राम भी कहते थे। इनको भी कभी मजदूर खींचते थे और कभी घोड़े को ट्राम के आगे जोत दिया जाता था। ये रेलगाड़ियां सिर्फ सामान मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन बहुत जल्द ऐसी रेलगाड़ियां बनना शुरू हुई जो इंसानों और जानवरों को लाद कर दौड़ने लगी। क्या आप जानते हैं कि यूनान में तकरीबन 600 कबल मसीह में पटरियों का इस्तेमाल किया गया? यूनान में दो समंदरों के दरमियान 6 किलोमीटर खुश्की का टुकड़ा था। सामान से लदी हुई बड़ी बड़ी कश्तियों को एक समंदर से दूसरे समंदर तक ले जाना मुश्किल था, इसलिए इन कश्तियों को कई सौ किलोमीटर तवील चक्कर काट कर दूसरे समंदर में जाना पड़ता था। इसका हल पटरियों की शक्ल में निकाला गया। अब कश्तियों को आसानी से इन पटरियों पर ले जाया जा सकता है। इन पटरियों के निशान आज भी यूनान में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन का मोड़ काटना किस तरह मुश्किल है? 18वीं सदी तक सामान ले जाने वाली ट्रेनें तो चलना शुरू हो गई थी, लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये थी, ये ट्रेनें ना की सीध में मादनियत की कानों से दरियाओं के किनारों या साहिल समुद्र तक जाती थी। वापसी पर वही घोड़े जो आगे जता हुआ होता था, उसे पीछे जोत कर वापसी का सफर शुरू कर दिया जाता था। लेकिन कई मुश्किल जगह ऐसी भी थी। जी हाँ, लेकिन कई मुश्किल जगह ऐसी थी जहां रेल सीधी नहीं जा सकती थी। इसको हर सूरत में मोड़ काटना पड़ता था। ऐसे में लकड़ी की पटरियां अक्सर टूट जाती थी। मालगाड़ियों को कई कई दिन के लिए रोकना पड़ जाता था। चुनाचे रेल के मोड़ काटने के लिए एक ऐसा हल निकाला गया जिससे रेल की तारीख ने एक नया मोड़ ले लिया। अब लकड़ी की जगह लोहे की पटरी इस्तेमाल की जाने लगी, लेकिन लोहा इस वक्त बहुत महंगा और कामयाब था। इसका हल ये ढूंढा गया, पटरी तो लकड़ी ही की रही, लेकिन इसके ऊपर लोहे की चादर चढ़ा दी गई। यूं कुछ वर्षों के बाद सारी पटरी लोहे की इस्तेमाल होने लगी। लेकिन 1857 में लोहे की जगह फौलाद यानी स्टील की पटरियां ज्यादा इस्तेमाल होने लगी और आसानी से मोड़ काटने लगा। भाप का दौर 1679 में साइंसदान इस बात का पता लगा चुके थे कि भाप में बहुत ताकत है। 17वीं सदी में इस ताकत से कोयले की कानों से पानी बाहर की तरह फेंका जाता था। 1769 में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वार्ड ने भाप की ताकत से चलने वाला पहला मुकम्मल इंजन दुखानी इंजन बनाया, जो कश्तियों और बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होने लगा। इसमें कोयले की मदद से पानी को भाप बनाया जाता था। फिर 1829 में जॉर्ज स्टीफनसन ने रेल का इंजन लोकोमोटिव इजाद किया, जिसमें भाप की ताकत से इंजन को पटरी पर आगे की तरफ धकेला जाता है। किसने बनाया? जी हाँ, किसने बनाया? रेल का इंजन किसने बनाया? किसने बनाया और किसने चलाया? जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। रेलवे का बकायदा इदारा बनता है। इंग्लैंड के विलियम जेम्स को जदीद रेलवे निजाम का बानी कहा जाता है। इसने पहली बार भाप से चलने वाले इंजन को देखकर यह मंसूबा बनाया कि बर्तानिया के शहरों और कस्बों को पटरियों के जरिए से मिला दिया जाए तो सफर और भी आसान
और तेज रफ्तार हो जाएगा। चुनाचे पहले रेलवे स्टेशन भी इंग्लैंड बर्तानिया के दो शहरों डॉर्लिंगटन और स्टॉक्सन में बनाए गए। इनके दरमियान 40 किलोमीटर लंबी पटरी बनाई गई थी। सितंबर 1825 में जॉर्ज स्टीफनसन के बनाए हुए दुखानी इंजन से चलने वाली तजर्बाती ट्रेन ने स्टॉक्सन से डॉर्लिंगटन तक का सफर किया। 1830 में खुले डब्बों वाली बोगियों में सैकड़ों मुसाफिर मैनचेस्टर से लिवरपूल तक का सफर 56 किलोमीटर तय कर गए। यूं बकायदा रेलवे के निज़ाम और गाड़ियों के निज़ाम-उल-औक़ात का आगाज हो गया। इसके बाद इसी निज़ाम को जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में भी नकल किया गया। बरतानिया ने इन इलाकों में भी रेलवे का निज़ाम कायम किया जहां इसका कब्जा था, जैसे मौजूद पाकिस्तान और भारत के इलाकों में। सच तो ये है कि सफ़र शुरू करते वक्त हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया और हम इस पर कादिर ना थे, और बेशक हमने अपने रब की तरफ पलटना है। अब भाप से नहीं, बिजली से ट्रेन चलेगी। बिजली की दराफत के बाद 1890 में लंदन की सड़कों पर बिजली की पहली ट्रेन चला देगी। इस ट्रेन को स्ट्रीट कार, ट्राम या बरकी रेल भी कहा जाता था। 1904 में हांगकांग चीन में, 1910 में अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में बरकी रेल या ट्राम का बकायदा आगाज कर दिया गया। ये गाड़ियां ज़्यादातर एक डब्बे पर मुश्तमिल होती थी, लेकिन कहीं कहीं एक से ज़्यादा डब्बे भी जोड़ दिए जाते थे। अहम बात यह है कि ये गाड़ियां सड़क के दरमियान में बनी हुई पटरी पर से तेज गुजरती थी। इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी आजकल रेलगाड़ियों की होती है। बहुत से मुल्कों में ये गाड़ियाँ आज भी उसी तरह चलती हैं। अब तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर बिठाने के लिए 2 मंजिलें भी बना दी गई हैं। आजकल सऊदी अरब में 10 से 18 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें साहली शहर दमाम को हफूफ, जहरान, दहरान, अल-खराज और रियाज से मिलाती हैं। इनका आगाज 1951 में हुआ था, लेकिन आज से 100 साल पहले भी मदीने में लोग ट्रेन का सफ़र किया करते थे। आप हैरान होंगे, ये कारनामा तुर्कों ने सर अंजाम दिया था। उस्मानी सल्तनत अब्दुल हमीद दोम ने इस लाइन का तामीर का हुक्म दिया। तामीर का मकसद सफ़र के दौरान में हाजियों की मुश्किलात को कम करना था। इसका एक और अहम मकसद दमश्क, शाम और मदीना को आपस में मिलाना था। हिजाज रेलवे के नाम से 1900 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ। 1908 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। जंग अवला के दौरान बरतानवी फौजी जासूस थॉमस एडवर्ड लांस ने रेलवे को लाइन को तबाह कर दिया। ये तुर्कों की सप्लाई लाइन थी, जिससे कट जाने से इन्हें शाम और अरब में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये है ट्रेन जो बहुत तेज चलती है, जिसका सफ़र बहुत आसान होता है। घंटों का सफ़र मिनटों में होता है, मिनटों का सफ़र सेकंड्स में हो जाता है। अब हम सब सैर करेंगे, वो भी ट्रेन की। इसे कहते हैं बुलेट ट्रेन। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ।